Okay, students, today we are starting a new experiment, and the name of the experiment is coefficient of viscosity of a given viscous liquid by measurement terminal velocity of a given spherical body. आज हम फाइंड करेंगे coefficient of viscosity. पहले हम मेजर करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर और उसके बाद हम उसका रिलेशन यूज कर फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. Introduction. Viscosity is the property of a fluid, liquid or gas by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers. It is the fluid friction or the internal friction. तो एक्चुअली जो विस्कोसिटी होती है वो होती क्या है, जैसे कि हम मान लें कि जैसे लेयर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्लो कर रही हैं, लिक्विड इज फ्लोइंग इन नंबर ऑफ लेयर्स, दिस लेयर इज इन टच विद द ग्राउंड and this is the top layer. So the velocity of the top layer is maximum and the velocity of the lower ground layer is the minimum. तो इन दो लेयर्स के बीच में भी एक ऑपोजिंग फोर्स लगेगा. उस ऑपोजिंग फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं, और उस फिनोमिनन को हम जानते हैं विस्कोसिटी के नाम से. So the internal tangential force which tends to retard the relative motion between the adjacent layers is called viscous force. तो ऐसा फोर्स जो लिक्विड को आगे बढ़ने से रोकता है, उसको अपोज करता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं. Stokes law and terminal velocity. Stokes law क्या कहता है? Stokes showed that if a small sphere of radius r is moving with a velocity v through a homogeneous stationary medium of viscosity coefficient eta, then the viscous force acting on the sphere is Fv equal to 6 pi eta Rv. स्टोक्स कहता है कि अगर किसी होमोजीनियस लिक्विड के अंदर या एयर के अंदर हम किसी एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप करें तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, और उस पर जो लगने वाला जो विस्कस फोर्स है, ऑपोजिंग फोर्स है, वो है Fv, that is equal to 6 pi eta Rv, where eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of the sphere, and v is the terminal velocity of a spherical object. So terminal velocity क्या होती है? When a solid sphere falls in a liquid, its accelerating motion is controlled by the viscous force due to liquid, and hence it attains a constant velocity which is known as the terminal velocity. तो homogeneous liquid के अंदर जिस velocity constant velocity के साथ sphere move करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, terminal velocity कहते हैं. तो यहाँ पर लगेगा as shown in figure, when the body moves with constant velocity, terminal velocity with no acceleration, the net upward force बैलेंसेस द डाउनवर्ड फोर्स. तो यहाँ पर दो फोर्स अपने आप को बैलेंस करते हैं. तो ऊपर की तरफ एक तो लग रहा होता है अपवर्ड थ्रस्ट, जिसे हम बाइंड फोर्स के नाम से भी जानते हैं, और एक लग रहा होता है स्टोक्स के कारण विस्कस फोर्स, जिसको हम कहते हैं 6 पाई नीटा आरवी, और नीचे लग रहा होता है वेट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, दैट इज mg, और m को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट वाइज रिटन एज 4/3 पाई r क्यूब rho g. The variation of velocity with time or distance is shown in the adjacent figure. तो टर्मिनल वेलोसिटी जो टाइम और डिस्टेंस के साथ जो वेरी करती है, ये उसका ग्राफ है. Examples of bodies moving in viscous medium: a balloon filled with helium or hydrogen moves up with constant rate in air due to the viscosity. The lead ball fall in long glycerin tube downwards with constant velocity due to viscosity, and the parachute falls down with a small terminal velocity due to viscosity. So these are the certain examples regarding the viscosity. आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपेरिमेंट का, कि हम फाइंड करना चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करना चाहते हैं. सबसे पहले हमें निकालनी होगी टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये रहा हमारा एपरेटस जिससे हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे. तो इस एपरेटस में क्या होता है कि एक ट्यूब होती है ग्लास की. इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम एक होमोजेनियस लिक्विड फिल्ड कर देते हैं लाइक ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन फिल्ड करने के बाद हम इस ट्यूब के अंदर दो मार्क लगा देते हैं. सपोज द मार्क ए, दिस इज द मार्क ए, एंड दिस इज द मार्क बी.
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लेड बॉल को डालते हैं। लेड बॉल क्या करती है, धीरे धीरे नीचे जाती है और कुछ देर बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी को अटेंड कर लेती है। तो हम जब यहाँ से पास होती है, लेड बॉल व्हेन पासिस थ्रू द पॉइंट ए, जब पॉइंट ए से वो जब पास होती है वहां पर हम स्टॉप वॉच को चालू कर देते हैं, और जब वो बी से पास होती है तो हम स्टॉप वॉच को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का हमें टाइम पता है, तो हमें पता चल जाता है कि इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, उससे हम उसका क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब दिस इज द फॉर्मूला टू हाउ टू फाइंड आउट द टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमने देखा था वहां पर कि दो फोर्सेस बैलेंस करते हैं, एक अपवर्ड थ्रस्ट होता है और एक होता है स्टॉक्स के कारण Fv, और नीचे क्या होता है, mg। सो बाइंड फोर्स के अंदर जो डेंसिटी होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है लिक्विड के कारण, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा rv एंड हियर द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जो हमने mg लिया है, तो mg को हमने लिया है 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा रो जी, और यहाँ पर अपवर्ड थ्रस्ट को लिया है हमने 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, वे सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द होमोजेनियस लिक्विड। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का, द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी इज 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी नीटा। अगर सब चीजें कांस्टेंट मान ली जाए तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है, आर स्क्वायर हो जाती है। This is the graph between the velocity and the r square। तो v is directly proportional to r square है, इसलिए यहाँ पर जो आपको लाइन मिल रही है, स्लोप जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। So here is the straight line। So the graph between v is directly proportional to r square। So the graph between v and r square is a straight line। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमको, द लिक्विड शुड बी हाईली विस्कस एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि आसानी से हमें बॉल जाती हुई दिखाई दे। बॉल शुड बी परफेक्टली स्फेरिकल होनी चाहिए, उसको चारों तरफ से उसकी डायमीटर सेम होनी चाहिए। द लेड शॉट शुड बी ड्रॉप जेंटली, उसको बहुत धीरे से उस ग्लिसरीन के अंदर गिराना है। एंड द फॉलिंग लेड शॉट शुड नॉट टच द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब, और वो किसी भी प्रकार से ग्लास ट्यूब को टच नहीं करनी चाहिए। वेलोसिटी शुड बी नोटेड ओनली व्हेन इट बिकम्स कांस्टेंट, और जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, जब वो कांस्टेंटली फॉल करने लगे, तभी हमें उसकी वेलोसिटी क्या करनी चाहिए, नोट करनी चाहिए। Facts and applications of the viscosity, there are certain facts and the use of the viscosity. First, in Millikan conducted the oil drop experiment to determine the charge of the electron. He used the acknowledge of viscosity to determine चार्ज। तो उसने यहाँ पर किसका यूज किया था, विस्कोसिटी का यूज किया था। विस्कोसिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिंटिंग प्रोसेस, पेंटिंग एंड स्प्रेइंग। विस्कोसिटी ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रे। आपने देखा होगा आजकल हम जो दीवारों को स्प्रे करते हैं उसके अंदर विस्कस लिक्विड होता है, और विस्कस लिक्विड की विस्कोसिटी इस प्रकार से की जाती है ताकि वो आसानी से उस पर फैल सके। हाईली विस्कस लिक्विड्स आर यूज्ड टू डैम द मोशन ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, और ज़्यादा विस्कस लिक्विड होंगे तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के मोशन को क्या कर सकते हैं, डैम कर सकते हैं। इसीलिए जो मशीन्स होती हैं वो सर्दियों में जाम हो जाती हैं। The knowledge of the coefficient of viscosity and its variation with temperature helps to choose suitable lubricants for machine depending upon the operating conditions। तो अगर मुझे किसी भी लिक्विड की अगर विस्कोसिटी पता है और किस टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी किस तरीके से बिहेव करती है, कितनी चेंज होती है, तो मैं उस लिक्विड को फैक्ट्रीज के अंदर, मशीन्स में और डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स में क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मशीन। द वेलोसिटी, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप अटेन लिमिटिंग वैल्यू बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि जो भी लिमिटिंग वैल्यू आती है जब हम किसी फॉल करती है लिक्विड ड्रॉप, तो वो किसके कारण होती है, दैट इज द विस्कस फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर। तो एयर जो विस्कस फोर्स एक्सर्ट करती है उसी के कारण रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो एक लिमिटिंग वैल्यू को अटेंड कर पाती है। पॉइज इज द यूनिट ऑफ, तो हम जानते हैं कि पॉइज जो है वो विस्कोसिटी की यूनिट है। सो इट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सो द करेक्ट आंसर इज द 4। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज
two small spheres of radii r and 4r fall through a viscous liquid with the same terminal velocity, the ratio of the viscous force acting on them. तो हम जानते हैं कि that the viscous force is given by the Stokes, that is 6 pi eta rv. So here everything is constant, so F is directly proportional to R, so F1 is directly proportional to R1 and F2 is directly proportional to R2. So R1 is given R and R2 is given 4R. So the ratio between the viscous forces is 1:4. So the correct answer is 4. Two drops of equal radius are falling through air with a steady velocity 1 centimeter per second. If the two drops coalesces, then its terminal velocity will be. तो हमको निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी. दो ड्रॉप्स दे रखी हैं, तो दो ड्रॉप्स क्या हो जाती हैं, कॉलेस हो जाती हैं और कॉलेस होके एक बड़ी ड्रॉप को बनाती हैं. तो दो ड्रॉप्स हैं, छोटी ड्रॉप है, उसकी रेडियस r मानी है. सो देयर आर टू ड्रॉप्स, और टू ड्रॉप जब कॉलेस होती हैं तो उससे एक बड़ी ड्रॉप बनती है, उसकी रेडियस हमने कितनी मानी है, r मानी है. सो r इज द रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप. वी नो दैट द दे आर, जो बड़ी ड्रॉप बनी है वो दो छोटी ड्रॉप से ही बनी है, तो उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा. तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉल ड्रॉप्स. इससे हम r और उसके बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं. सो दैट इज r इक्वल टू 2 1/3 r हो गया. अब हमको निकालनी है टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, डेट इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी है, 2 1/3 r का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है. सो दिस इज r 2y 1/3. सो दिस इज इक्वल टू 4 1/3. So the correct answer is 4 1/3 centimeter per second. So this is the correct answer. Another question is, two raindrops falling through air have radii of ratio 3:2. They will have terminal velocity in the ratio of. We know that if everything is constant, then the terminal velocity is directly proportional to the radius of the sphere. So v1 upon v2 equal to r1 square upon r2 square, and the ratio is given 3/2. So we have put in this formula. So this is equal to 9/4. So the correct answer is 9:4 is the right answer. Another question is, a drop of water of radius 0.0015 millimeter is falling in air. If the coefficient of viscosity of air is 2.0 into 10 raised to power minus 5 and the density of the air is neglected and the density of water is given 1.0 into 10 की power 3 kg per meter cube. So we have to find out the terminal velocity. We know that the formula for the terminal velocity, if the density of air is neglected, then 2/9 r square rho g upon eta. Put all these values in this formula where r is given 0.0015 millimeter. We have to convert it in meter. Then the density is given 1.0 into 10 raised to power 3 and g is given 10. And eta is given 2.0 into 10 raised to power minus 5. So the terminal velocity by applying this all is 2.5 into 10 raised to power minus 4 meter per second. So the correct answer is third. So third is the correct answer. Viscosity of liquids increases with increase in temperature, is independent of temperature, decreases with decrease in temperature, decreases with increase in temperature. So at high temperature, molecule possesses high kinetic energy, thus it can overcome the intermolecular force to flow faster. तो इससे क्या होने लगता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड तेजी से फ्लो करने लगता है. इसका मतलब यह है कि अगर हम विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. सो द करेक्ट आंसर इज 4. The velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin become
constant after some time. If the density of glycerin is given by d by 2, then the viscous force acting on the ball will be. तो हमें ये बताना है कि इस पर कितना viscous force लगेगा. So we are provided with a ball, and this ball have the two forces. One is the buoyant force upwards and the viscous force upwards, and the downward force is mg, and the ball is moving with constant velocity. So when body moves in with constant velocity, it means acceleration is 0. So by free body diagram, mg is equal to fv plus fv. हमें निकालना है viscous force fv, so that is equal to mg minus fv. तो हम जानते हैं कि mg इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. सो दिस इज इक्वल टू v रो जी. तो mg को हमने कितना लिख दिया है, v रो जी, और यहाँ रो कितना है, d के बराबर है. तो दिस इज कैन बी रिटन एज vdg. सो हियर vdg. अब Fb जो वाइन फोर्स लगता है वो हमेशा लिक्विड के कारण लगता है, और लिक्विड के कारण लगता है तो यहाँ ग्लिसरीन की डेंसिटी कितनी है, d बाई 2. तो बाइंड फोर्स के अंदर वॉल्यूम तो बॉडी का ही रहता है, लेकिन डेंसिटी जो है वो लिक्विड की रहती है. तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बट द डेंसिटी इज टेकन एज लिक्विड. जब हमने इसको सॉल्व किया देन वी गेट dVg अपॉन 2, एंड dVg इज इक्वल टू mg. सो द करेक्ट आंसर इज mg बाई 2. सो द विस्कस फोर्स एक्टिंग is mg by 2. So the correct answer is 1. 1 is the correct answer. Next question, the terminal velocity of a copper ball of radius 5 mm falling through a tank of at room temperature 10 cm per second. If the viscosity of oil at room temperature is this, द विस्कस ड्रैग फोर्स इज. तो हमें बताना है कि कितना विस्कस ड्रैग फोर्स लगेगा. तो वी नो दैट द विस्कस ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, वेयर 6 वी पुट द वैल्यू 6 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 3.14, ईटा की वैल्यू हो गई 0.9, और R की वैल्यू दे रखी 5 मिलीमीटर, उसको हमने चेंज कर दिया है मीटर के अंदर, और हमको वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको भी हमने चेंज कर दिया है मीटर पर सेकेंड में. बाय दिस वी गेट दिस वैल्यू. सो द करेक्ट आंसर इज 8.48 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स A and B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस इन द गिवन आंसर्स. फर्स्ट इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर घटाएं तो क्या विस्कोसिटी भी कम होती है, ये हमें किसी प्रकार से सही नहीं लग रहा है. और सेकंड है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमें सही लग रहा है. तो इसका मतलब यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड. थर्ड इज द राइट आंसर. तो A इज फॉल्स बट B इज ट्रू. Next question है, two metal spheres are falling through a liquid of density this 2 into 10 raised to power 3 kg per meter cube with the same uniform speed. Speed कैसी है, यूनिफॉर्म है. The material density of sphere 1 and sphere 2 are given 8 into 10 raised to power 3 and 11 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. The ratio of their radii, तो हमें बताना है कि उनकी रेडियस के रेशियोज क्या होंगे. तो हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा. तो हम जानते हैं कि दोनों की यूनिफॉर्म स्पीड है, तो दोनों की हमने इक्वेट कर दिया. सो 2r1² रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा एंड 2r2² रो माइनस सिग्मा g अपॉन 9 ईटा. तो इसको हम रो 1 ले सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो 2. फिर हमने इसको सॉल्व किया तो रो 1 का वैल्यू है 11 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 और रो 2 का वैल्यू है 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 एंड द लिक्विड डेंसिटी विल रिमेन सेम. So by solving it we find out that R1 upon R2 equal to root 3 by 2. So the correct answer is 4. 4 is the right answer. So 4 is the right answer. Next question है, machine parts are jammed in winter. Reason, the viscosity of lubricant used in machine part increases at low temperature. So both A and B are true and R is the correct explanation of A. बिल्कुल सही बात है कि जब सर्दियाँ आती हैं मशीन के पार्ट जाम हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर फॉल हो जाता है और टेम्परेचर फॉल होने के कारण विस्कोसिटी बढ़ जाती है. तो द करेक्ट आंसर इज बोथ A and R are true and R is the correct explanation of the A. So first is the correct answer.
थैंक्स स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से हम विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।